rising the dream and the promise of a top-tier metro like Delhi, Mumbai, Bengaluru. The real story is rising in India's Tier 2, Tier 3 and Tier 4 cities. So Siddharth, let's start with retail. What is happening in the malls? Ideology of malls have now changed. Malls were considered to be more of a shopping experience Right. rather than entertainment. अगर आप दिल्ली NCR में अगर सेग्रीगेट करें तो यहाँ पे मेन मार्केट्स होती है जिसको मॉल्स ने टेक ओवर किया. बिल्डर्स या डेवलपर्स आज की डेट में जितने भी मॉल्स डेवलप कर रहे हैं उनको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि दे हैव टू put weightage on the utilization of the space. कि आदमी जब मॉल के अंदर एंटर करे so he feels that he is entering into an experience rather than he is entering into segregated spaces. What is the importance of a mixed-use development? अगर मैं इसको एक लाइन में पुट करूं, it is work, live, shop in the same area. You are also now considering Ayodhya, Vrindavan, Mathura. There is a lot of potential in 2-tier and 3-tier cities. Faridabad has become a very lucrative market for integrated townships because nominal rates पे एक middle class को अपना खुद का प्लॉट बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. Is it then for the pilgrims? See, my target audience is everyone. So यहाँ पे क्या affordable luxury रहेगा या affordable homes रहेगा? Our CMD Mr. Uddhav Podar has a very fine vision. We are a luxury builder, but at affordable prices. So we want to give the right product at the right price to the right customer. We are here to create communities in such form that मुझे जाके अपने inventory को sell ना करना पड़े. My product is self-explanatory. If you travel across India today, you'll notice something fascinating. While everyone is chasing the dream and promise of big cities like Delhi, Mumbai, Bengaluru, and everyone wants the badge of a top-tier metro developer, the real story, the appetite, the energy, the momentum for growth is actually rising in Tier 2, Tier 3 and Tier 4 cities. Welcome back to Brick by Brick, where we decode how India is being built one bold idea at a time. Today, we are turning the spotlight away from the top-tier metros onto the smaller cities because aspiration isn't a metro monopoly. In fact, it breathes and thrives wherever people demand better spaces, better homes, and better experiences. Leading this quiet but powerful revolution is Bhumika Realty, the name behind Rajasthan's biggest mall and some of the landmark mixed-use development projects across India's smaller cities. Joining me today is Siddharth Katyal, CEO of Bhumika Realty, with whom we will explore what it takes to build in markets most others tend to overlook. Thank you for calling me. So Siddharth, let's start with retail because your primary identity is that you are the biggest mall developer of Rajasthan in that you have built Urban Square in Udaipur. So what is happening in the malls currently? What do the people want? Do they want food? Do they want entertainment? Do they want open spaces? And what is exactly driving the footfalls of in malls in 2025 or going into 2026? Namrata, the ideology of malls have now changed a lot. Pre-COVID, malls were considered to be more of a shopping experience Right. rather than an entertainment zone. आपको मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ. अगर आप दिल्ली NCR में अगर सेग्रीगेट करें तो यहाँ पे मेन मार्केट्स होती थी आपकी, जैसे वेस्ट दिल्ली में रजौरी गार्डन मार्केट हो गई, सेंट्रल दिल्ली में आप करोल बाग चले जाएंगे या आप चांदनी चौक चले जाएंगे, साउथ दिल्ली में आप सरोजनी नगर या साउथ एक्स की मार्केट में चले जाएंगे. तो उस एक्सपीरियंस में लोगों को एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट नहीं मिलता था. हर जगह एक ही कंसोलिडेटेड एरिया में एक रिटेल एक्सपीरियंस नहीं मिलता था जिसको मॉल्स ने टेक ओवर किया एज अ सिंगल स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर रिटेल एक्सपीरियंसेस. Okay. लेकिन जब कोविड आया और लोग अपने घरों में बंद हो गए और एक तरह से उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो गई, देयर होल फिलॉसफी ऑफ सीइंग लाइफ चेंज्ड. Mall has now become a sense of experience rather than a retail center or an entertainment center. आज आप अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, स्पेशली इन द मेट्रो एंड द सब मेट्रो सिटीज़, कि लिटरली आपको हफ्ते में 5 दिन अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती कि आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ किसी को भी इंजॉय कर सके. क्योंकि 9 to 6 जॉब के अंदर कम्यूटिंग टाइम को भी मिला लें, दूसरा भी मिला लें, तो यू हार्डली गेट टाइम टू इवन मीट योर ओन फैमिली मेम्बर्स एट होम. Right. So whenever you are on a holiday or you have some time, you want to spend time with your loved ones, the people you care about, your friends and family, in such an environment or a place where you save time plus
you get all the experiences in one place. So the ideology of a mall or a retail center has changed into a, मैं अगर इसको बड़े सिंपल टर्मिनोलॉजी में कहूँ कि आज वो एक होल्डिंग कैपेसिटी वाला सेंटर होना चाहिए जिसके अंदर इतना मसाला हो कि वो हर किसी की ज़रूरत को पूरा कर सके. आज सिर्फ वही मॉल चलता है या वही मॉल के अंदर आपको पॉपुलेटेड फुटफॉल नज़र आता है जिसके अंदर आपको इन सारी चीज़ों का इन्फ्लक्स मिलता है. अदरवाइज अगर आप 80% मॉल्स देखोगे तो बिल्डर्स या डेवलपर्स आज की डेट में जितने भी मॉल्स डेवलप कर रहे हैं उनको इस पेडिग्री को समझना पड़ेगा. उनको इस साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि डिज़ाइनिंग के अंदर दे डू नॉट ओनली हैव टू put weightage on more of efficiency of the space. They have to put weightage on the utilization of the space. Okay. कि वो पूरे स्पेस की सर्कुलेशन, वो मॉल की सर्कुलेशन, उस पूरे मॉल की जोनिंग किस तरह से होनी चाहिए कि आदमी जब मॉल के अंदर एंटर करे सो ही फील दैट ही इज एंटरिंग इनटू एन एक्सपीरियंस रादर दैन he is entering into segregated spaces. Correct. It's interesting, Siddharth, that you say that in a shopping mall, the least priority is actually shopping and everything else, because then that is the clue factor. That is Yeah. what keeps the people there. But I want to also move on to something else, and which is the cookie cutter problem. You see, every mall across tier 2, 3, 4 big top tier metros look identical to me. I mean, this thing about same glass facade, same brand list. Do you think the mall should actually be representing the culture of the state, or that they should be always following a standard template? And how do you ensure a balance? Namrata, I'll give an example of Dubai. Yeah. मैं कई बार पहले भी अपने कई पॉडकास्ट में इस चीज़ का एग्जांपल दे चुका हूँ. When the king of Dubai decided that he wants to transform the city and he wants to make it into a big magnet of influx of population to visit it. Yeah. Because oil तो उनका ख़त्म हो गया. So what do they have to showcase? They had only two options, either tourism or trade. So what did they do? They envisaged a vision that हमें दुबई को सिर्फ एक अच्छी मॉडर्नाइज सिटी नहीं बनाना, हमें उसको एक वर्ल्ड सिटी बनाना है, which has an influx of everything. Yeah. So they brought in the best of the minds, they brought in the best of the architects, they brought in the best of the professionals who could envision their vision and implement it into reality. Okay. आज जिस दुबई को आप देखते हो जिसके अंदर it is known as the safe house of everybody. आज यूरोप के कई एचओज हेडक्वार्टर्स कॉर्पोरेट्स के दुबई मूव हो रहे हैं. हमारे एशियन कंट्रीज से लोग वहाँ पे जाके सेटल हो रहे हैं. All the HNIs of India, they are going there. आज सिर्फ शॉपिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग दुबई जा रहे हैं. जी जी जी. या आज एंटरटेन होने के लिए या हॉलीडे स्पेंड करने के लिए दुबई जा रहे हैं. सो व्हाट वाज द विजन? द विजन वाज वेरी क्लियर टू स्टैंड आउट डिफरेंटली. सो इफ अ डेवलपर एंड इट्स, मैंने दुबई का एग्जांपल इसलिए नहीं लिया कि आई वांट टू गिव अ रेलेवेंस टू अ लार्ज स्केल डेवलपमेंट. इट इज एप्लीकेबल टू माइक्रो, मैक्रो, एवरी काइंड ऑफ डेवलपमेंट. It should be a standard template. Is that what you're saying? No. It's not. It should not be a standard template. It should be innovative. Okay. आज आप अगर वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपीरियंसेस से या बेस्ट स्ट्रक्चर से इंस्पायर होते हो, बट एज अ डेवलपर इफ यू डू नॉट सिट ऑन द ड्राइंग बोर्ड योरसेल्फ टू फर्स्ट amalgamate the vision or that sketch with your local requirements, that synchronization is missing. That's why you are getting the stereotype structures. Okay, the cookie cutter approach. जो आप जिसको आप कुकी कटर बोलते हो. जी जी. अगर मुझे फरीदाबाद में मॉल बनाना है लेकिन मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मॉल बनाना है तो मैं डिजाइन जरूर ले सकता हूँ एक इंटरनेशनल आर्किटेक्ट का. लाइक बेंटल इज डिजाइनिंग माय मॉल इन फरीदाबाद which is by the name of Icon. It is a multi-use development project. So we have given our thought process to Bentel. He'll give us an international design. He'll give us the best of the best facade or a very unique design which is not present there because it has to be a eyeball catching design. Yes. आपके मॉल में आएगा क्यों कोई? Correct. जब तक मतलब वो कहते हैं ना कि facade matters और the exterior matters. अगर आपकी बिल्डिंग सुंदर ही नहीं दिखेगी, अगर आपका लैंडस्केप सुंदर ही नहीं दिखेगा, why will people be attracted to enter inside it? Yeah. So you have to make it a magnet. So that is also very important. But at the same point of time, as a developer, you first have to do a Reiki, a deep dive study as to what is the requirement of that particular geographical area and the demography of that area. कि पब्लिक क्या मांगती है.
करेक्ट। पब्लिक को क्या चाहिए, जी जी जी। उस हिसाब से आपको उस मॉल को डिजाइन करना पड़ेगा, उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि मॉल का फर्स्ट कस्टमर उसके 5 से 10 किलोमीटर की पेरिफेरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बाहर के लोग आते हैं। तो चलिए सिद्धार्थ जी वहीं जाते हैं जहां आप जिसका आपने जिक्र किया, विच इज़ फरीदाबाद द आइकन, एंड आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट, दिस मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एंड नॉट वन, यू हैव डन कपल ऑफ मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और you are developing in other tier 3 and 4 cities as well. So I mean, what is the importance of a mixed use development? Is it like the best use case of land? Is it about lifestyle, walkability, or it's also convenience that everything is? अगर मैं इसको एक लाइन में पुट करूं, इट इज वर्क लिव शॉप इन द सेम एरिया Okay. और इन द सेम प्लेस वेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज कॉम्प्लेक्स, Yeah. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज मोस्ट यूजेबल। आज जैसे हमने उदयपुर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल क्रिएट किया बाय द नेम ऑफ अर्बन स्क्वायर, एंड उदयपुर इज अ टायर 3 सिटी, जी। और we created 1 million square feet area mall there, plus Keys Hotel by Lemon Tree is already operational, which is a 68 room property. Holiday Inn is under construction, and in the phase 3 we will be also coming out with a 5-star hotel. So it is a mixed use development. We also have office spaces over there. The mall and the one budget hotel is already operational over there. और उदयपुर जैसी सिटी में हम 90 प्लस प्रीमियम ब्रांड्स को लेके आए. You name the brand, we have over there. We have the best Inox over there. PVR का सबसे अच्छा फॉर्मेट वहाँ पे है. We have Lifestyle, we have Shopper Stop, we have every big brand over there. तो उदयपुर जैसी सिटी which is a tier 3 city, Yes. जिस मतलब जयपुर हो या दूसरी cities हो which are more highlighted, अगर इन brands को वहाँ पे लेके आए, how could we do that? Because we created that ecosystem and we explained to the brands that that there is a need, there is a demand, there is the purchasing power. Correct. But Yeah. there is the essence is missing. And these brands only come when they find that the ecosystem is there to support their brand. Very good. Very interesting. Yeah. So we hired the best of the architects over there. Bentel of South Africa only designed our mall over there, who has also designed our icon project in Faridabad. Okay. We brought the best of the infrastructure facilities over there, and we tried to create a marvel wherein it was a crowd puller, because your mall or your retail center has to be a crowd puller. अगर वो मैग्नेट नहीं है, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स, वो इकोसिस्टम आपने क्रिएट नहीं किए, तो वहाँ पे आज it is one of the most successful malls over there, or of Rajasthan. Why? Because you have created an ecosystem. Similarly, in Faridabad, it was an unorganized market earlier. Yes. बहुत सारे developers already काम कर रहे थे, लेकिन I think Faridabad was not getting a highlight which it was supposed to get, because Delhi NCR में ज़्यादा नोएडा प्रमोट हो रहा था या गुड़गांव प्रमोट हो रहा था. Despite being an industrial town and a town of such great heritage, and इतनी इंडस्ट्रीज वगैरह होने के बावजूद शायद वो इंटरकनेक्टिविटी मिसिंग थी, जिसकी वजह से इसकी हाईलाइटिंग नहीं हो रही थी. आज जेवर एयरपोर्ट बनने की वजह से इसकी इंटरकनेक्टिविटी आपके गुड़गांव के साथ और T3 के साथ होने की वजह से, RRTS कॉरिडोर आने की वजह से, आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ इसकी इंटरकनेक्टिविटी की वजह से, KMP की वजह से, जोग्राफिकली इट हैज़ बिकम द सेंटर पॉइंट. आज नोएडा से जेवर एयरपोर्ट पहुंचना डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में कम टाइम लगेगा. Correct. सो कहीं ना कहीं वो सेंटर पॉइंट आने की वजह से पिछले 2 साल में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग जोन में आ गया, क्योंकि एक तरह से एक सेंट्रल हब हो गया, जैसे दिल्ली में धौला कुआं हो गया. तो ये दिल्ली NCR का कहीं ना कहीं एक धौला कुआं बनता चला जा रहा है. अच्छा. उस वजह से आज वहाँ पे दूसरे डेवलपर्स जो हैं उनका अट्रैक्शन चला गया, बिकॉज गुड़गांव हैज़ बिकम वे टू एक्सपेंसिव. नोएडा के अंदर भी प्राइस टीपिंग बहुत ज़्यादा हो गई. Faridabad, despite having a very great purchasing power, was missing premium developments. Yes. So we thought that there is an opportunity that we can encash on by creating something very unique, a world-class infrastructure which can get highlighted, and which can, I will not say change the entire sphere of Faridabad, but which can be an initiator to
promote and entice other developers also to come in and create similar kind of infrastructures. नम्रता, इसमें एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगा, आज किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन का जो आदमी है वो अपनी लोकेशन के, जैसे मैंने बोला, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की पेरिफेरी में जाएगा। जी हाँ। फरीदाबाद का जो परचेजर है वो या तो नोएडा जाएगा या साउथ दिल्ली जाएगा, वो गुड़गांव नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल टाइम। करेक्ट, या। लेकिन आज अगर उसी की विसिनिटी में उसको एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए जहाँ पे दिल्ली के, गुड़गांव के, नोएडा के टॉप F&B ब्रांड्स हो, टॉप रिटेल ब्रांड्स हो, टॉप वनीला ब्रांड्स हो, तो वो क्यों 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जाएगा? वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और ये भी है कि इंटरेस्टिंग है कि आप अंडर सर्व मार्केट्स कैसे पिकअप करते हैं और फिर उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टेड देयर एंड वील कम टू नाउ द हेरिटेज सिटीज़। It was interesting that you are also now considering Ayodhya, Vrindavan, Mathura, these cities. How does your product change in a heritage city? Is it all low rise or contextual? What is the design philosophy? I basically believe that in real estate there are two kinds of development. One is a vertical development जिसमें आप high rise, low rise या built up space जिसको आप कहते हैं वो बनाते हैं. One is a horizontal development जिसके अंदर आप integrated townships बनाते हैं. तो मुझे लगता है कि there is a lot of potential in 2-tier and 3-tier cities like Sonipat, Vrindavan, Palwal, Bahadurgarh, Jhajjar, all these kinds of places, Ayodhya, Lucknow, where you have a huge potential, क्योंकि it's a human Indian psychology कि हम लोगों को ज़मीन से बहुत प्यार है। ये तो है। और आप फादर हैं, आप अगर अपने 40-50 साल की उम्र में है तो आप ये चाहेंगे कि मैं एक अपने बच्चों के लिए घर बना जाऊं। अगर आप अपने यंग एज में है तो आप कहेंगे मैं अल्टीमेटली कुछ इतना जोड़ लूं कि मैं एक पार्सल ऑफ लैंड खरीद सकूं ताकि मैं अपना जड़ समेत मकान बनाऊं। तो इट्स आर साइकोलॉजी। तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर हट गया। आज दिल्ली NCR में तो आप देखें कि प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं कि दिल्ली हैज़ बिकम लिटरली अनअफोर्डेबल फॉर द मिडिल क्लास। तो जो आदमी 2-tier 3-tier सिटीज़ से दिल्ली NCR में काम करने आ रहा है या सबर्ब्स एरिया में आ रहा है काम करने के लिए, आज वो थोड़ा डिस्टेंस प्लेसेस पे इसलिए पहले नहीं जाना चाहता था कि इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन आज द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दिल्ली NCR इज गेटिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स हैज़ बिकम सो रोबस्ट, और आने वाले 2 साल में और ज़्यादा इतना रोबस्ट हो जाएगा। यू विल नॉट बिलीव, जो नया UER खुला है फ्रॉम सोनीपत टू एयरपोर्ट, उससे आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम सोनीपत, सो आई टुक द UER एंड आई हैड टू रीच एम्बियंस लीला होटल इन गुड़गांव। इट टुक मी जस्ट 40 मिनट्स। जो बाय हाफ इट हैज कट डाउन। सो जिसको पहुंचने में मुझे कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लगेंगे। बिल्कुल। तो आज अगर फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद हैज़ बिकम अ वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट फॉर इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, बिकॉज आज आपको बड़े नॉमिनल रेट्स पे एक मिडिल क्लास को अपना खुद का प्लॉट बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ प्लॉट्स होंगे, आप कह रहे हैं यहाँ पे प्लॉट्स आएंगे, लो राइज आएंगे, हर चीज़ आएंगी। लेकिन आज मिसिंग क्या था फैक्टर जिसको हम लोग ने एड्रेस कर रहे हैं कि इट वाज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। पीपल अगर गुड़गांव जा रहे हैं और अगर वो किसी कम्युनिटी लिविंग में जा रहे हैं, वो कम्युनिटी लिविंग में जाते हैं वहाँ की सर्विसेज एंजॉय करने के लिए। हाँ। मैं एक अपार्टमेंट लूँगा तो मैं एक अपार्टमेंट एक सोसाइटी में ये देख के लूँगा कि वहाँ पे क्लब हाउस है कि नहीं है, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, वहाँ पे 3-tier 4-tier सिक्योरिटी है कि नहीं है, या वही चीज़ है कि नहीं है। जब इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स की बात आती है, प्लॉटिंग की आती है, तो दैट एलिमेंट आई थिंक नॉर्थ इंडिया में इज़ मिसिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। सिर्फ 2 या 3 बड़े डेवलपर्स को छोड़ के जितने मिड साइज़ या छोटे डेवलपर है वो बेसिक प्लॉटिंग्स पे काम कर रहे हैं कि आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया, प्लॉट्स क्रिएट किए और वो कर दिए। जबकि देयर इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर लग्जरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स टुडे। And let's talk specifically about and that also at a economical rate, which is your basic purchasing power class. आपका जो मिडिल क्लास और आपका जो हायर मिडिल क्लास है, जिसका आज भी बजट 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ रुपए के बीच में है, वो कहाँ जाए? जी, या एब्सोल्युटली। वो कहाँ जाए?
उसके लिए अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी लिविंग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप उसको क्लब हाउस भी दें, आप उसको गेटेड कम्युनिटी भी दें, आप उसको Security भी वर्ल्ड दें। क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें, आप उसके अंदर अच्छे लेवल की डेवलपमेंट करें, उसको सिर्फ ये महसूस हो कि इसमें सिर्फ एक फ्लैट नहीं है, मेरा प्लॉट है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे वो सारी फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो मुझे एक कम्युनिटी लिविंग में अगर मैं अपार्टमेंट में रहता तो मिलती। वाई विल ही नॉट बी प्रिविलेज्ड to Yeah. own his own house Yes. and create his own house? So, Siddharth, is it then for the pilgrims, for the metro citizens that you are? Is that the target audience? So, see, my target audience is everyone. For very basic example, आज दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर के अंदर 90% जितने भी लोग काम कर रहे हैं, which you call as the salaried class or the corporate, they are all migrated. Yes. कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई कहीं से आया है। बिकॉज एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, गांव का आदमी बड़े गांव में जाएगा, बड़े गांव का आदमी छोटे शहर में जाएगा, छोटे शहर का आदमी उससे बड़े शहर में जाएगा, बड़े शहर वाला मेट्रो में आना चाहेगा, मेट्रो वाला विदेश जाना चाहेगा। Correct. तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इन लाइफ। तो जब आप माइग्रेट करते हो, इनिशियली आप रेंट पे जाओगे, या अगर आपके फादर या आपकी लेगेसी है तो आप अपने लिए कोई परचेज्ड होम खरीदोगे। सो ये जितनी आपकी माइग्रेशन है, दिस इज अ कंटिन्यूअस process and it will never stop because India is now become the 5th largest economy in the world और जिस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, we are aspiring to become 4th और 3rd largest economy in the world. तो उस हिसाब से जितना आपका एक्सपोजर आपके पास आ रहा है, जितना कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, जितनी जॉब क्रिएशन हो रही है, जितनी आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले। आने वाले 30 साल का भी काम आपको थोड़ा है। बिल्कुल। So the supply is going to be less, the demand is going to be more. Yeah, then urbanization is happening. Absolutely. And urbanization is happening at a very, very vital stage and a very, very aggressive stage. That's true. आज आप वो urbanization की जो planning कर रहे हो, and if a developer is hitting the right market at the right time, जिसको कहते हैं स्वीट स्पॉट को अगर हिट करके चलेगा, कि आप अपने कस्टमर की, जिस कस्टमर को भी आप एंगेज करना चाहते हो, उस कस्टमर की पॉकेट, उस कस्टमर की एस्पिरेशन, उस हर चीज का बैलेंस बना के अगर आप चलेंगे, सो यू विल बी एबल टू गिव द राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो सिर्फ आपके फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए नहीं, एंड यूजर के लिए भी बहुत वाइबल होगा। So hold that thought, Siddharth, about suiting the pocket, because pocket एक बहुत बड़ी चीज़ है, affordability एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आपका मैं जो देख रही थी प्रोफाइल, एनसीआर बेल्ट में आपने जो उठाए हैं रीजन्स, बहादुरगढ़, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, पलवल, सो यहाँ पे क्या अफोर्डेबल लग्जरी रहेगा या अफोर्डेबल होम्स रहेगा, और व्हाट इज दैट डेफिनेशन, इन व्हाट प्राइस बैंड आर यू प्लानिंग टू लॉन्च व्हाट? सी our CMD Mr. Uddhav Podar has a very, very fine vision, and Bhumika Realty is based on a very simple concept that we are a luxury builder, but at affordable prices. So we want to give the right product at the right price to the right customer. We do not believe in superficial prices. Plus, we believe in high quality products at sustainable prices, and we believe that we are here to create communities in such form that आज मुझे जाके अपने इन्वेंट्री को सेल ना करना पड़े। माई प्रोडक्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो एज अ कंपनी वी बिलीव दैट दिल्ली एनसीआर एंड एक्सटेंडेड एनसीआर एज वी कॉल इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, जिसके अंदर आपका फरीदाबाद आता है, आपका पलवल आता है, वृंदावन आता है। वृंदावन ऑफ कोर्स इज अ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन मोर, बट आज की डेट में बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द एक्सप्रेस कॉरिडोर्स which are being planned by the UP government, वो भी काफ़ी highlight में आ गया। सोनीपत has come into a lot of highlight, पानीपत has come into a lot of highlight. Similarly, Jhajjar, Bahadurgarh, Kharkhoda, all these areas which are in a periphery of, you can say, 50 to 100 kilometers from the epicenter of Delhi, have become the hot spots. उसका reason है for the customer, especially for the middle class and the higher middle class, affordability. Second, the backbone, again I repeat, is the infrastructure which has been created and is being created to reduce the traveling time. That I get your point. दूसरा पॉइंट वो हो गया। तीसरी चीज़ क्या हो गई कि इन सारे एरियाज में अगर आप अपने कस्टमर को लो कॉस्ट पे वेरी वेल इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स दे पाते हैं, लग्जरी टाउनशिप्स दे सकते हैं, जिसके अंदर आप उनको क्लब हाउसेस भी दे सकते हैं, आप उनको हर तरह की फीचर्स दे सकते हैं, जिसके अंदर दे फील प्रिविलेज टू स्टे देयर, दे डोंट माइंड गोइंग देयर।
आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आज जो लोग नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, प्रीतमपुरा, रोहिणी, डीडीए फ्लैट्स में रहते होंगे, कहीं रहते होंगे, आज अगर उनको एडवांटेज मिलता है कि मैं अफोर्डेबली 1.5-2 करोड़ रुपए में एक प्लॉट ले सकता हूँ, तो वो अपना यहाँ का फ्लैट बेच के वो प्लॉट ले लेगा। कईयों की फैमिलीज एक्सपैंड हो रही है लेकिन पॉकेट पावर उतनी नहीं है, से दे डोंट माइंड गोइंग देयर बिकॉज इट जस्ट टेक्स 20 मिनट्स फ्रॉम द कुंडली बॉर्डर, सॉरी फ्रॉम मुकरबा चौक टू रीच सोनीपत टुडे। द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन डेवलप्ड सो मच। आज अगर आप फरीदाबाद की बात करें तो पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग अप टू पलवल, क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है। आज जो लोग गुड़गांव काम करते हैं वो काम गुड़गांव में करते हैं, रहते वो नोएडा में भी है, रहते वो फरीदाबाद में भी है, रहते वो दिल्ली में भी है, वो हर जगह रह रहे हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी ऐसी हो गई है कि 20-25 मिनट 30 मिनट में आप धीरे धीरे हर जगह पहुंचना शुरू हो जाओगे। But the project cost is not coming down, is what you're saying. I mean, it's if अगर because of the unaffordable, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आज गुड़गांव has is known as a world city today, आज बहुत modernized हो गई और बहुत hyped and highlighted हो गई, so it is not affordable for everyone to buy or purchase land in Noida, sorry गुड़गांव। तो आज नए सेक्टर्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, आज लोग अफोर्डेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, बट दे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अफोर्डेबिलिटी के साथ उनको वही लग्जरी, वही फीचर्स चाहिए। सो दैट इज द स्वीट स्पॉट कॉर्नर। ओके, आज गुड़गांव के अंदर आपने देखा होगा पिछले 2 साल 3 साल में बड़े बिग साइज अपार्टमेंट्स का कल्चर आ गया। 3-3, 4-4 हज़ार फुट के अपार्टमेंट निकलने शुरू हो गए, बट डू दे एक्चुअली हैव द हाई नीश मार्केट? आज उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका एक्चुअल कस्टमर जो वहाँ पे काम कर रहा है, 80% जनता जो काम कर रही है, चाहे नोएडा में कर रही है, चाहे गुड़गांव में कर रही है, चाहे दिल्ली में कर रही है, दे आर अगेन मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास, जिनका टिकट साइज या पॉकेट साइज आज भी 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ रुपए के बीच में है। तो वो अपनी अफोर्डेबिलिटी कहाँ ढूंढेगा? ही इज फोर्स्ड टू स्टे इन अ रेंटेड स्पेस, नहीं तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाएगा, तो वो डिस्टेंस पे वहां जाएगा जो उसको लगेगा इंटरकनेक्टिविटी के हिसाब से उसका ट्रैवल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, आई गॉट योर आंसर। 1 to 3 CR is roughly the price band in which you operate. So उस टिकट ब्रैकेट के अंदर there is a vast opportunity which is available in the market today. Good upscale integrated community, high quality, but community. don't expect anything cheap. No. You should not. As a developer, you should not. आज आप अगर अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में देखते हो तो यू आर हियर फॉर अ लॉन्ग रन। आज अगर आप एक शोकेसिंग विंडो अच्छी बनाते हो, कई डेवलपर सैम्पल्स बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, वो इम्प्लीमेंटेशन पूरी की पूरी आपकी कम्युनिटी में नजर नहीं आती। इट इज द राइट ऑफ द कस्टमर टू टेक दैट। करेक्ट। आज अगर आप किसी भी तरह की डेवलपमेंट बनाते हो, चाहे आप कमर्शियल बना रहे हो या रेजिडेंशियल बना रहे हो, लाइक यू आस्क्ड मी अबाउट मॉल्स, मॉल आपने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम को आप मेंटेन नहीं कर रहे, आप उसके अंदर वो मैग्नेट या वो पुल पावर क्रिएट नहीं रख रहे, आप उसके अंदर वो मिक्स ऑफ ब्रांड्स नहीं लेके आ रहे, मिक्स ऑफ F&B ठीक नहीं लेके आ रहे, मिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट ठीक नहीं लेके आ रहे, तो वो डाई डाउन कर जाएगा। बिल्कुल। सिमिलरली आपकी सोसाइटी के अंदर जो कैपिटल एप्रिसिएशन आना है या लोग वहाँ पे जो रहना पसंद करेंगे, वो तभी रहना पसंद करेंगे जब आप उनको वो एटमॉस्फेयर, वो इन्वायरमेंट दोगे। So it is more important, I always say that, to focus on creating that ecosystem. Okay. So your vision document, I was reading, Siddharth, and it states introduce integrated living through plotted and vertical communities. आपका मतलब है कि एक ही उसमें 2 तरह के integrated, या आप ये कह रहे हैं कि जैसे हेरिटेज सिटीज हैं तो only plotted and गुड़गांव वगैरह है तो vertical? Or are you talking in the same project, or are you talking in 2 distinctly different markets? See, whatever planning that we are doing as a company, we believe in one theory, very, very simple, that when we talk about integrated townships, in integrated townships, of course, 80% will be plotting. But we will be going for villas as well as low-rise floors also. Wherever we will be planning integrated townships in the long run, that will depend upon the accessibility and the demand that gets created. Initially, आप ऐसे एरिया में अगर प्लॉटेड की डेवलपमेंट लेके आ रहे हो जो ऑलरेडी बसा हुआ है, तो वहाँ तो आप लो राइज भी लेके आ सकते हो, आप हाई राइज भी लेके आ सकते हो, आप हर तरह की डेवलपमेंट लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाते हो,
जो सेक्टर्स अगले 2 साल में पूरी तरह डेवलप होंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ ऑफ कोर्स एज एन इन्वेस्टर इट इज़ मच मोर वायबल टू गो फॉर अ प्लॉटेड डेवलपमेंट. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम एरिया टू एरिया एंड जोग्राफिकल लोकेशन टू लोकेशन एज टू हाउ वी विल प्लान आवर प्रोजेक्ट्स. I see. Any examples that you will be able to give that, like in Ayodhya, plots would work better, and maybe in some other market, See, the low rise will work I'll better? give you an example of Vrindavan. Okay. Vrindavan has come into highlight in the last 1 or 2 years because एक तो वहाँ पे religious activity बहुत बढ़ गई, जी वहाँ पे highlighting बहुत हो गई. जी. Government has announced that it is going to make a corridor like Kashi Vishwanath corridor in Vrindavan. Yeah. So because of the religious beliefs and the kind of tourism that is coming over there, कहीं ना कहीं back of the mind में लोगों के होता है कि we should have a because of the following or the religious aspect कि एक प्लॉट होना चाहिए वृंदावन में, अच्छा, या plot. एक घर होना चाहिए वृंदावन में. तो आज वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे डेवलपर्स जो हैं उन लोगों ने आना शुरू कर दिया. I see. तो उस वजह से वहाँ की प्राइसेस अप्रिशिएट होना शुरू कर दिए. अगर मैं फरीदाबाद की बात करूँ तो फरीदाबाद के अंदर अगर आप देखें तो मैक्सिमम सोसाइटीज़ बनी हुई थी पहले, जी जी जी. और प्लॉटेड का या जो मेन सेंटर फरीदाबाद के अंदर जो बसा हुआ एरिया है वहाँ पे बसावट बहुत महंगी हो गई है. सो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ग्रेटर फरीदाबाद, जिसको नहर पार बोलते हैं. वहाँ पे अब नए प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए, I see. वहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट शुरू हो गई है. सो इट इज़ क्रिएटिंग अ अफोर्डेबिलिटी फैक्टर. वहाँ पे आज आपको 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक की रेंज में प्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं. Okay. तो वो आपकी अफोर्डेबिलिटी भी क्रिएट कर देते हो. आने वाले 2 साल या 3 साल के अंदर पीपल विल स्टार्ट मूविंग ओवर देयर. सो आज उनके लिए वो एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट हो जाती है. ठीक है. So, with that, we'll just jump into our next segment, which is rapid fire, which is all about instantaneous, spontaneous responses. So, what is the first metric that you check before entering any city? And you've entered so many. So, क्या देखते हैं आप before you enter a city? We study the demography of that area first. We get a research done properly through professional consultants before planning any project in a particular city. And we The go demography. in depth. डेमोग्राफी भी चेक करते हैं. दूसरा सबसे अगर मैं इसको वन लाइनर में मैंने पहले भी बोला कि व्हाट इज द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ओवर देयर, I see. और व्हाट इज द एस्पिरेशन व्हाई दैट एरिया विल ग्रो एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट यू शुड हैव ओवर देयर. Which tier 3 city has surprised you by its appetite for premium retail? If you talk about Delhi NCR or anywhere, Pan India? Pan India, Yeah. I think retail is growing everywhere. Yeah. For the simple reason that अगर वो grow नहीं हो रहा होता तो इतने सारे सेंटर्स नहीं आ रहे होते. आज अर्बनाइजेशन सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में या ईस्ट इंडिया में नहीं हो रही है, वो ओवरऑल हो रही है. बिकॉज मोर एंड मोर ब्रांड्स, मोर एंड मोर कॉर्पोरेट्स, मोर एंड मोर एमएनसीज, मोर एंड मोर इंटरनेशनल रिटेल आउटलेट्स आर कमिंग टू इंडिया. तो इन सब के इन्फ्लक्स के लिए आपको जगह तो चाहिए. दे नीड इकोसिस्टम्स एंड प्लस द परचेजिंग पावर ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग एज अ मार्केट. And we are a very big market. Yeah, but if you were to name one or two, which one would it be? I think you mentioned Udaipur earlier in the conversation. जितने 3 tier cities हैं, 3 tier cities वालों को ये एस्पिरेशन हो रही है कि why do we need to go and shop outside our city? Yeah. आज 3 tier cities वाले भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी वो सारे ब्रांड्स हों जिसके लिए हमें दूसरी सिटी में ना जाना पड़े. आज अगर आप उदयपुर का एग्जांपल देते हैं, अगर उदयपुर में मॉल नहीं होते तो वो बेचारे कहाँ जाते हैं? वो जयपुर जाते, करेक्ट, दिल्ली आते. अगर आज फरीदाबाद में मॉल की डेवलपमेंट नहीं होगी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि वहाँ पे आज बहुत सारे डेवलपर्स अब नए आ रहे हैं जो कि प्रीमियम वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, जैसे हम भी लेके आ रहे हैं. तो आज अगर उन्हीं की स्टेट में, उन्हीं की सिटी में वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट होगी, व्हाई दे विल अवॉइड while they will go to South Delhi, while they will go to Noida for so their Faridabad, Udaipur, these are some of the names. So the entire nation is getting decentralized. Right. What is more difficult in a smaller city, land acquisition or brand acquisition? I think brand acquisition. Brand acquisition इस वजह से क्योंकि in smaller cities when you enter as a big brand also कि आप एक मेट्रो सिटी से उठ के किसी 2 tier सिटी या 3 tier में जा रहे हो, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्रिएटिंग योर गुडविल. एंड इफ यू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ गुडविल, land is not a challenge. I see. People will come to you. And plotted communities or high rises, what excites you most as a creator? I think plotted. Because it has a fast
churning ratio. Yeah. It is more saleable, and plus the deliveries are much faster. Okay. There is a very minimal chance that your plot will get depreciated. मैंने आज तक नहीं सुना कि जमीन कभी सस्ती हुई हो. I see. जमीन हमेशा महंगी होती है, महंगी कभी होती सस्ती है. नहीं होती. What about branded residences? Is it hype or is it future? Branded residences is not a hype if used in the right sense. If any brand has developed a legacy over a period of time by creating icons in all over the world, so there is no harm taking those expertise, but at what cost? Okay, that's one thing. And the other is the alliance with just a luxury brand, or is it with a hospitality partner, or is it with something? Depends what way kind of a development you are making. Yeah. If you are making a resort kind of a thing, or you are making apartments, or your community which is service based, Yes. where you are going to provide all the services, Yeah. definitely you should tie up with a hospitality brand. But if you want good interiors or good infrastructure, which has already been created by certain brands and Yeah. who have a specialization or a mastery in that, so then you should go for those kinds of branded residences. Rent or buy? What's smarter in today's India? Definitely buy. Definitely buy. If you talk about Delhi NCR, अगर आपकी एवरेज सैलरी 2 लाख 3 लाख रुपए है और आप 50,000 60,000 रुपए के रेंटेड ऑप्शन में रहते हो, it's much more better to go for a housing loan or a EMI rather than to give rent. One city in India which you think will explode in real estate demand in the next 1 decade? In North India, I think Faridabad. Faridabad. It has a future for the next 10 years because Haryana के अंदर this was an area which was less highlighted. So this area is going to rock like anything. Okay. What's the next big trend that you anticipate in malls of India? Co-working within the malls or co-living near the malls? I think multi-use development का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है बिकॉज आपकी लैंड एक्सपेंसिव होती चली जा रही है एंड स्टैंड अलोन डेवलपमेंट्स कितनी सस्टेनेबल हो पाएंगी, कितनी ज़्यादा हो पाएंगी, प्लस जिस तरह से हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है और आपका वर्किंग पैटर्न बढ़ता चला जा रहा है, सो यू नीड टू सेव टाइम. Right. People need everything at instantly. Okay. So if you are able to reduce the time without affecting their privacy, so multi-use development is the future. Is the future. Okay, talking specifically about multi-use development, but more specifically mall development, what is the design element that malls should stop using? Conventional designs. Conventional design. I think that first impression is the last impression. Okay. So your infrastructure's facade has to catch the eyeballs. That is must. Yeah. Your landscaping has to be very, very attractive. The space should be efficient enough and spacious enough so that you feel pride. One heritage city that you would love to reimagine, and you're doing a couple of them already, but which is the one that your heart beats for the most? I think again I will say Faridabad only. Heritage city? Heritage city, I will say Vrindavan. Vrindavan. Okay. Vrindavan has a lot of scope. Vrindavan and that belt has a lot of scope. And one heritage rule which you wish could be simplified? साउथ के अंदर कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको अप्रूवल्स के लिए देयर इज अ सिंगल विंडो सिस्टम एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी. सो नॉर्थ इंडिया में भी मुझे लगता है स्पेशली इन स्टेट्स ऑफ हरियाणा, यूपी और एनीवेयर, यू डू नॉट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. देयर शुड बी अ सिंगल विंडो सिस्टम, मच मोर ईजियर, मच मोर फ्लेक्सिबल फॉर द डेवलपर्स. आपको आज अगर लाइसेंसिंग में जाना है, रेरा में जाना है, सो दी amount of land that is minimum required for any kind of a space should be less, so that deliveries should happen faster and phase wise. क्योंकि आज RERA is something which is very very important, right? And it gives satisfaction and confidence to customers. And if you want that the real estate market should grow, the real estate industry should grow, so you should give opportunity to each and every kind of player who is working in the market. If you keep a large cap size as to the approvals or the licensing policy, that has to be lowered down. जिसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि आप छोटे साइज ऑफ लैंड पार्सल में भी वो कंसेप्चुलाइजेशन कर सकते हो जो आप बड़े में कर सकते हो. सो इट विल गिव अपॉर्चुनिटी, प्लस इट विल गिव फास्टर डिलीवरीज.
And finally, one real estate trend which you think people are underestimating currently. So there's fractional ownership, there's co-living, co-working, mixed-use development. There's so many new emerging formats, new entrepreneurial ideas. मुझे ये लगता है कि today the investment pattern of people have changed. Right. Yeah. इन्वेस्टमेंट लोग जो करते हैं वो दो टाइप से करते हैं, आइदर इट इज़ फॉर एंड यूज़ और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. मैं अगर एक स्टार्टर हूँ, 20-25 साल का लड़का हूँ, लेट मी पुट इट इन एन एग्जांपल फॉर यू. तो अगर मैं आज कमाना शुरू करूँगा और आज की डेट में अगर आप MBA वगैरह कुछ भी करके आते हैं तो योर स्टार्टिंग पैकेज इज 70,000, 80,000, 90,000 रुपीज़. तो because of the kind of exposure that people have, तो good कि the young generation is thinking about investments more Right. rather than spurging here and there. Yeah. तो वो सबसे पहले उन शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा जिससे वो थोड़ा सा कैपिटल इकट्ठा कर सके. लेकिन अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the ultimate goal is to create a kind of investment which gives them benefits or which stays with them as a security for long run. So what today's conversation makes clear is that India's future will be shaped not just in the metros but in the tier 2, tier 3 and tier 4 cities. And groups like Bhumika Realty, they illustrate that how by bringing metro grade design and world class amenities, you don't just build projects but you build confidence in these markets. And thank you Siddharth for taking us through that journey and also for reminding us that India's next wave of real estate growth will be built brick by brick in places that the world is only now beginning to notice. Thank you. Thank you very much.